Namaskar बच्चों, welcome again to the science class. So let's continue our chapter, that is light reflection and refraction. So far we have discussed the reflection part. Now the next phenomenon of light, that is refraction. So what is the basic difference? In reflection we have seen the phenomenon of light in which light ray gets diverted back into the सेम मीडियम, जिस मीडियम से लाइट आ रही थी उसी में वापस लौट जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. व्हाट हैपन्स इन दिस रिफ्रैक्शन? the medium of light ray gets changed, means light ray enters from one medium to the another medium. Okay, so when what this phenomenon is, when light ray travels obliquely from one transparent medium into another, it gets bent, and this bending of light is called refraction of light. Okay, so medium of light gets changed when it travels through a transparent medium. Okay, and due to this trace passing, what happens, the speed of light gets changed. लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, एंड ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट व्हाट हैपन्स, it slightly less or more it bends towards its original path, and this phenomenon of bending of light due to change of medium is called refraction. Got it? You have observed the bent stick inside the water. Okay, the stick looks like a band due to refraction. Okay, because light ray also when passes from water to air, it bends. And what is the pattern of bending? We will discuss it later. When light ray travels from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. ये ध्यान रखिए, लाइट रेस जब भी रेयर मीडियम, अच्छा रेयर डेंजर ये फिजिकली मटेरियलिस्टिक रेयर डेंजर से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना, ये मास डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है. जिस मीडियम में, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, इट इज टर्म्ड एज रेयर मीडियम. ओके, एंड द मीडियम in which the speed of light ray is comparatively less, such kind of medium is considered as optically denser medium. Okay, denser medium जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी, जिससे हम अगर हम if we compare among air, water and glass, so we can say that air is rarest medium of the three, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड इन तीनों में एयर में ही होती है लाइट की. एयर से मोर ऑप्टिकल डेंजर मीडियम इज वाटर. वाटर में एयर से स्पीड लाइट की कम होगी. मोर ओवर ग्लास की अगर बात करें तो उसमें वाटर से भी कम होगी स्पीड लाइट की. सो ग्लास इज कंसिडर्ड एज मोर डेंजर मीडियम. गॉट इट? सो व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंजर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. Okay, you know what the normal is. At the point of incidence, the imaginary perpendicular is called normal. तो जब भी रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम की ओर, suppose this here, this light ray is coming, and here this is the interface of both the medium, and here is the rare medium, here is the danger medium. So after refraction, its original path should be like this, but due to refraction these ray deviated from the original path. ये जो लाइट रे से स्ट्रेट ना जाकर ये बैंड हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये मोर डेंजर मीडियम में है. यहाँ पर दिस इज़ द नॉर्मल, सो इससे ऐसे जाना था, बट दिस लाइट रे, ये इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हाट हैपन्स, इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो रेयर से डेंजर मीडियम में जब भी लाइट रे ट्रेवल करेगी वो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी. डोंट फॉरगेट दिस. ओके, दिस इज द बैंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंजर मीडियम टू द रेयर मीडियम? हियर दिस इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट इन द डेंजर मीडियम एंड इट इज गोइंग टू द रेयर मीडियम. सपोज हियर इज वाटर एंड हियर इज एयर.
देन व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इट्स मूवमेंट, इसे ऐसा स्ट्रेट जाना चाहिए, बट स्ट्रेट ना जाकर व्हाट यू आर सीइंग हियर, it bend away from the normal. Here is the normal and this ray bend away from the normal. कब अवे हुई, जब डेंजर से रेयर मीडियम में गई तो नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो गई, और रेयर से डेंजर मीडियम में आई थी तो नॉर्मल के करीब शिफ्ट हो गई है। ये भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। Then refraction of light through a rectangular glass slab. It is very important. We will discuss. We will see the practical also. आपका एक सिलेबस में इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछा ही जाता है, एंड इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ग्लास स्लेब एक क्यूबॉइड जो होगा ग्लास का, एक जो cuboid shaped piece है glass का, that is called glass slab. When a ray of light passes through a rectangular glass slab, it gets bent twice at the air glass interface and at the glass air interface. The emergent ray is parallel to the incident ray and is displaced through a distance. ये हम देखते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सी दिस इज़ अ ग्लास प्लेट, यहाँ पर आपको ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है बट एक्चुअली इट इज़ क्यूबॉइडल, है ना, क्यूबॉइड शेप की होती है ये। अब जब इसमें कोई रे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इंसिडेंट रे, ओके, एंड इसका पाथ कैसा होना चाहिए, इट शुड गो स्ट्रेट लाइक दिस, ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, बट फ्रॉम एयर, ये रेयर मीडियम है, ये एंटर हुआ ग्लास में, डेंजर मीडियम में, तो रेयर से डेंजर मीडियम में जब लाइट रे इंटर हुई है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल सर्टेनली बैंड, एंड इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जस्ट थिंक हियर इज द रेयर मीडियम, दिस इज डेंजर मीडियम, तो रेयर से डेंजर में जाएंगी तो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। हियर इज द नॉर्मल, और इसको ऐसे जाना था स्ट्रेट, बट रिफ्रैक्शन के कारण ये रेयर से डेंजर में आई तो नॉर्मल की ओर बैंड हो गई। अब ग्लास के अंदर ये पास हुआ यहाँ तक, और दूसरे फेस पर, दिस इज आल्सो इंटरफेस, हियर आल्सो द मीडियम इज चेंज्ड, हियर इज डेंजर मीडियम दैट इज ग्लास, हियर इज रेयरर मीडियम दैट इज एयर। तो फिर से यहाँ पर एक और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हुआ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर एक और रिफ्रैक्शन होगा, और ये ग्लास से ये रे जब एयर में जाएगी तो ये इस नॉर्मल से अवे बेंड होगी। गॉट इट, ये पहले इंटरफेस का मीडियम है, नॉर्मल है, ये दूसरे इंटरफेस का नॉर्मल है। आप देख रहे हो जब रेयर से डेंजर में आई थी तो लाइट रे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हुई थी, और यहाँ पर जब ये डेंजर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो अवे बेंड हो रही है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। एंड यू सी अगेन, यहाँ पर भी एक रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास टू एयर, और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड, इट इज़ डिनोटेड बाय ई, ओके। यहाँ पर इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं कहा गया, इसको कहा गया एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। ये इंसिडेंट हुई, दिस इज इंसिडेंट रे, this is refracted ray which is traveling inside the glass, and here it is emergent ray, emergent ray जो फिर से दूसरी बार रिफ्रैक्शन से वापस एयर में बाहर आई है। एंड यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, जो रे इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था उस पाथ से ये डेविएट हो गई, लेकिन उसी पाथ के ये पैरेलल है इमरजेंट रे। सो दिस फेनोमेनन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ this incident ray from its original path due to double refraction through this glass slab is called lateral displacement. What is it called? Lateral displacement. Lateral means side, and displacement ये shift हो गई ना side में, okay. So this is very simple and very interesting phenomenon. इसको ऐसे सीधे जाना था, बट ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंडिंग हो गई, यहाँ से फिर डेंजर टू रेयरर रिफ्रैक्शन हुआ तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंडिंग हो गई। तो पैटर्न कैसा आया इसका, ओरिजिनल पाथ से ये पैरेलल
साइड में शिफ्ट हो गई इमर्जेंट रे। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ से हम उसको देखेंगे तो हमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा, इस रे के स्ट्रेट में हमें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिखेगी। गॉट इट। और इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, यहाँ से जो रे आएगी, यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये हमें वर्चुअली इस पोजीशन पे दिखाई देगा। ओके, दिस इज ड्यू टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। नाउ you understood what refraction is. Now just similar to the reflection, there are also the two universal law of refraction also. क्या है दो रिफ्रैक्शन के लॉज? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तीन चीज़ें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, all the three things should lie in the same plane. ओके, ये वही रूल है जो रिफ्लेक्शन में भी ये रूल है। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में ये कॉमन रूल फॉलो होता है कि जो तीन रेज हैं, दो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए। अनदर वेरी पिक्यूलियर rule is there and it is discovered by a scientist Snell. That's why in the honor of his, the law is called Snell's law. And what does it say? This law tells us that the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. Okay, किसी भी रिफ्रैक्शन फेनोमेनन के दौरान हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेज़र करें और उसका साइन लें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेज़र करें और उसका साइन कोफिशिएंट निकालें, तो इन दोनों एंगल्स के साइन कोफिशिएंट का जो रेशो होगा वो हमेशा सेम क्वांटिटी होगा। इट विल बी कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। गॉट इट। साइन कोएफिशिएंट ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, दोनों का जो रेशो होगा that is always a same quantity, a constant. Then the new term comes here, that is refractive index. ये refractive index एक यूनिटलेस क्वांटिटी है जो हमें ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताती है मीडियम की। और क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ओके, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सिंपल अच्छा, पहले तो आप ये समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह की होगी। एक होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेफरेंस टू द वैक्यूम, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट। और फिर दो मीडियम का आपस में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ये मैथमेटिकल फार्मूला से आपको और क्लियर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी। सो एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको सी से डिनोट किया जाता है और स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम उसको वी से डिनोट किया जाता है। सो एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी, ये मैथमेटिकल फार्मूला है किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। बुक्स में जो न्यूमेरिकल दिए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, मीडियम 1 में लाइट का स्पीड क्या है, उसको मीडियम 2 में लाइट का स्पीड क्या है, इसका जो रेशो है ये निकल कर आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
mathematically we can say that refractive index of second medium with respect to 1 is equal to v1 upon v2. v1 means speed of light in medium 1 and v2 means speed of light in medium 2. ओके ये डेफिनेशंस जितने भी टर्म्स आ रहे हैं दोनों रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस के लॉज एंड ये टर्म्स न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला मैग्निफिकेशन ऑल दिस फार्मूले एंड ऑल दिस टर्म्स द डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस टर्म्स you must remember, you must memorize all these things. Then the refraction through spherical lenses, we will discuss it later. Lenses के refraction and mirror for image formation by spherical lenses, then lens formula, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. आप इसके अच्छे से तैयारी कीजिए. ओके, गुड डे, टेक केयर.